Hello children, how are you? I hope you all are doing good. Children, now we will read lesson The Mountain Stream. This lesson gives us a glimpse of Ruskin Bond's love for nature. Read on to enjoy the beauty of the stream through the eyes of the author. नेचर हम सबको बहुत सुंदर लगता है कि नहीं लगता है? तो ये जो लेसन है रस्किन बॉन्ड का, इसमें उन्होंने जो नेचर में जो ब्यूटीफुल थिंग्स हैं, जो स्ट्रीम्स हैं, ब्रुक्स हैं, रिवर्स हैं, हिल्स हैं, वो उन्होंने किस ढंग से उसको देखा है और कैसे उन्होंने उसको एंजॉय किया है, उन्होंने इस लेसन में दिया है. There is a brook at the bottom of the hill. From where I live, I can always hear its murmur. Murmur कहते हैं जो स्लो लो साउंड होता है. But I am no longer conscious of the sound except when I return from a trip to the plains. And yet I have grown so used to the constant music of water that when I leave it behind, I feel naked and alone, bereft of my moorings. It is like getting accustomed to the friendly rattle of teacups every morning and then waking one day to an empty stillness, bereft of my mooring means अपने natural world से अलग हो जाना, away from the natural world. अब नरेटर किसके बारे में बात कर रहे हैं? एक ब्रुक के बारे में जो हिल के बॉटम में है. जब वो वहाँ रहते थे तो वो उसके मर्मरिंग साउंड को जब धीरे धीरे जब कोई ब्रुक्स वगैरह जो स्मॉल रिवर्स होती हैं या झरने होते हैं तो उनका एक स्लो साउंड होता है, तो उसको वो हमेशा सुना करते थे. बट ही वॉज नो लॉन्गर कॉन्शियस ऑफ द साउंड एक्सेप्ट व्हेन ही रिटर्न फ्रॉम अ ट्रिप टू द प्लेन्स. Yet he had grown so used to the constant music of water that when he left it behind, he felt alone. जब कभी इतने हैबिचुअल हो गए थे उस साउंड के कि जब कभी वो उसको छोड़ करके कहीं और जाते थे तो वो उनको क्या लगता था कि वो अपने रियल वर्ल्ड से कहीं दूर चले गए हैं और अकेले हो गए हैं. That was like getting accustomed to the friendly rattle of teacups every morning. जैसे हर सुबह हम जो चाय का कप पीते हैं हम उसके हैबिचुअल हो जाते हैं ना, तो इसी तरह से जो है वो भी उसके हैबिचुअल हो गए थे. एंड व्हेन वन डे ये मॉर्निंग का जो हम टी कप डेली पीते हैं ना उसके हैबिचुअल हो जाते हैं, हम उसके फ्रेंडली हो जाते हैं, तो इसी तरह से जो है वो भी इसके हैबिचुअल हो गए थे. बिलो द हाउस इज अ फॉरेस्ट ऑफ ओक एंड मैपल एंड हिमालयन rhododendron. A path twists its way down through the trees over an open ridges where red sorrel grows wild, and then down steeply through a tangle of thorn bushes. Thorn bushes जो कटीली झाड़ियाँ होती हैं. Creepers and wrangle bamboo. At the bottom of the hill, the path leads onto the grassy verge. Surrounded by wild roses, the stream runs close by the verge, tumbling over smooth pebbles. Pebbles बोलते हैं छोटे छोटे पत्थरों के लिए, कंकड़ के लिए. Over rocks worn yellow with age, on its way to the plains and to the little song river and finally to the sacred Ganges. Sacred means पवित्र गंगा. अब जहाँ उसका घर था उसके नीचे क्या था? एक फॉरेस्ट था जहाँ पर ओक, मैपल और हिमालयन रोहोडेंड्रम थे. तो वहाँ से जो रास्ता था दैट वाज ट्विस्टेड टूवर्ड्स द ट्रीज ओवर एन ओपन रिजेस वेयर रेड सॉइल ग्रोज वाइल्ड एंड देन डाउन देयर वाज अ टैंगल ऑफ थॉर्न बुशेस, क्रीपर्स एंड रंगाल बैम्बू. तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर थी. Moreover, at the bottom of the hill there was a path which was going on to the grassy verge and that was surrounded by wild roses. वहाँ पर जंगली गुलाब जो है खिले हुए थे. जो स्ट्रीम थी that was close by the verge.
और कहाँ से होते हुए निकलती थी वो? जो स्मूथ पेबल्स होते हैं, जो रॉक्स होती हैं, उनके ऊपर से होते हुए जो है वो जो स्ट्रीम थी वो वहाँ से बह करके वहाँ से निकलती थी और फिर वहाँ से फाइनली कहाँ जाती थी? टू द सैक्रेड गेंजेस, जो पवित्र गंगा नदी है उस तरफ को जाती थी। When I first discovered the stream, it was April, and the wild roses were flowering, small white blossoms lying in cluster. Cluster means झुंड में एक साथ थे। There were still pink and blue prime roses on the hill slopes and an occasional late flowering rhododendron provided a splash of crimson against the dark green of the hill. Crimson कहते हैं जो bright red कलर होता है। तो जब नरेटर ने सबसे पहले उस स्ट्रीम को डिस्कवर किया, that was the month of April, and that time wild roses were flowering. वहाँ पर वाइट कलर के ब्लॉसम्स भी थे जो क्लस्टर्स में थे और प्राइम रोजेस भी थे हिल स्लोप में, और ओकेजनली वहाँ पर क्या थी? लेट फ्लावरिंग ऑफ रोहोडेंड्रन। उनके जो कलर थे वो कैसे थे? क्रिम्सन कलर के, और वहाँ पर चारों तरफ जो डार्क ग्रीनरी थी उस हिल की, उसके अगेंस्ट में वो बिल्कुल रेड रेड से फ्लावर बहुत सुंदर लग रहे थे। अ स्पॉटेड फॉकटेल, a bird of the Himalayan stream, was much in evidence during those early visits. It moved nimbly over the boulders with a fairy tread and continually wagged its tail. Both of us had a fondness for standing in running water. Once, while I stood in the stream, I saw a snake swim past, a slim brown snake, beautiful and lonely. A snake in water is a lovely creature. अब वहाँ पे और क्या देखा नरेटर ने? फॉकटेल। फॉकटेल क्या है? एक बर्ड है हिमालयन स्ट्रीम में। तो दोनों, वो बर्ड भी और नरेटर भी, जो वो पानी बह रहा था नदी का, ब्रुक का, झरने का, उसमें जो है वो बड़ा इंजॉय कर रहे थे दोनों। और बर्ड जो है इंजॉयफुली, द बर्ड वॉज वेगिंग इट्स टेल, सो दे बोथ वर हैविंग फॉन्डनेस फॉर स्टैंडिंग इन रनिंग वाटर। वहाँ पे उन्होंने एक स्नेक को भी देखा जो बिल्कुल स्लिम ब्राउन कलर का था। A snake in water is a lovely creature. In May and June, when the hills were always brown and dry, it remained cool and green near the stream, where ferns and maidenhair and long grasses continued to thrive. Thrive होना, flourish होना. Downstream, I found a small pool where I could bathe and a cave with water dripping from the roof, the water spangled gold and silver in the shafts of sunlight that pushed through the slits in the cave roof. मई जून का मौसम कैसा था? पहाड़ियों में बिल्कुल सब कुछ ड्राइनेस थी, ब्राउन था, क्योंकि हरियाली उस समय नहीं थी, और वहाँ पर जो है ड्राइनेस थी, बट इट रिमेन्ड कूल एंड ग्रीन नियर द स्ट्रीम। जहाँ पर फर्न थे, मिडन हेयर था, लॉन्ग ग्रास थी, वहाँ पर वो अच्छे से फ्लरिश हो रही थी। वहाँ उन्होंने एक छोटा सा पूल भी उनको नज़र आया जहाँ पर वो नहा सकते थे आराम से, और साथ में एक केव थी जिसकी छत से वाटर ड्रिप हो रहा था। तो सूरज की रोशनी जब उस पर पड़ रही थी तो गोल्ड और सिल्वर कलर उसमें उनको नज़र आ रहा था। Few people came there sometimes. A milkman or a coal burner would cross the stream on his way to the village, but the nearby hill stations, summer visitors had not discovered the heaven of wild and green things. The monkeys, langurs with white and silver grey fur, black faces and long swishing tails had discovered the place, but they kept to the tree and sunlit slopes. They grew quite accustomed to my presence and carried on about their work and play as though I didn't exist. They were clean and polite, much nicer than the red monkey of the प्लेन्स। अब वहाँ उनको मंकी, लंगूर, ये सब एनिमल्स भी नज़र आए। उन्होंने ऑथर को नोटिस कर लिया था
but they were used to of the author's presence. और ऑथर की प्रेजेंस में वो इस ढंग से अपना अपना काम कर रहे थे जैसे कि वो वहाँ पर हो ही ना. During the rains, the stream became a rushing torrent. Bushes and small trees were swept away. And the friendly murmur of the water became a threatening boon. Murmur means धीमी आवाज़ जो होती है, बड़बड़ाहट की आवाज़ होती है. तो रेनी सीजन में क्या था, जो स्ट्रीम्स थी वो बहुत ज़्यादा टॉरेंट हो गई थी, बहुत हैवी फ्लो में शुरू हो गया था. और इतना हैवी फ्लो था कि उन्होंने क्या किया, जो स्मॉल ट्रीज थे और जो बुशेस थी उनको बहा दिया. नाउ देयर फ्रेंडली मर्मर became a threatening boon to the author. I didn't visit the place too often as there were leeches in the long grass. Leeches किसको बोलते हैं? आप जोंक देखिए आपने पानी में होती है, वो चिपक जाती है, उसको बोलते हैं लीचेस. तो वहाँ लंबी लंबी ग्रास में उनको वो क्या नज़र आई, लीचेस भी थी. तो इस वजह से the author didn't visit the place too often. But it was always worthwhile tramping through the forest to feast my eyes on the foliage that sprang up in a tropical profusion. Soft spring moss, great stake ferns on the trunk of trees, mysterious and sometimes evil-looking lilies and orchids, and wild dahlias, and the climbing convulses opening its purple secret to the morning sun. तो वहाँ पर क्या था, ये सारी चीज़ें उनको नज़र आ रही थी. ब्यूटीफुल फ्लावर्स थे और स्प्रिंग जो मॉस वहाँ पे ग्रीन, जो आप देखते हैं छोटी छोटी सी जब पानी के पास में जो मॉस काई तरह से हो जाती है, तो वो काई भी वहाँ पर नज़र आ रही थी, लेकिन सुंदर लग रही थी, बहुत सॉफ्ट सी थी वो. ऑर्किड के फ्लावर, डहेलियास के फ्लावर, ये सब उनको नज़र आ रहे थे. और साथ में सुबह जब सूरज निकलता है तो उस समय जब वो निकलते हैं तो बहुत सुंदर नज़र आते हैं. द क्लाइंबिंग कन्वर्जेस ओपनिंग इट्स पर्पल सीक्रेट्स टू द मॉर्निंग सन. जो पर्पल कलर की जो उनकी फ्लावर्स हैं वो सुबह के टाइम में जब निकलते हैं तो बहुत सुंदर लगते हैं. And when the rains were over and it was October and the birds were in song again, I could lie in the sun on sweet smelling grass, a patterns of oak leaves into a blinding blue heaven, and I would thank my God for leaves and grass and the smell of things, the smell of mint and myrtle and bruised clover and the touch of things, the touch of grass and air and sky, the touch of the sky's blueness. मिंट किसको बोलते हैं? आपने कभी पुदीना यूज़ किया है? चटनी में जो हम डालते हैं उसको बोलते हैं मिंट. बहुत अच्छी खुशबू उसकी आती है. तो वहाँ जो नरेटर हैं उनको जब अक्टूबर मंथ में वो वहाँ पर गए थे तो उनको वहाँ पर सब कुछ ये सब नज़र आया. अक्टूबर तक रेन का सीज़न जो है, रेनी सीज़न ओवर हो गया था और वहाँ पर उनको जो है दोबारा से बर्ड्स के सॉन्ग सुनने को मिल रहे थे. नाउ देयर ही कुड लाई इन द सन, क्योंकि अक्टूबर का मंथ सर्दी का महीना होता है. और जो स्वीट स्मेल थी ग्रास की, ओक लीव्स की, वो बहुत सुंदर, बहुत अच्छी उनको लग रही थी. और ही वॉज thanking to God for giving him such beautiful things like green grass, leaves, beautiful smells of herbs. These all things were too much attractive to him. And then after a November hailstorms, hailstorms किसको बोलते हैं? आपने देखे ओले जब गिरते हैं तो ओलों को बोलते हैं hail. It was winter and I could not lie on the frost yellowed grass. जो frost yellowed grass में frost हो जाती है, grass उस समय green नहीं होती है, तो वहाँ पर जो है he was not able to live. The sound of the stream was the same, but I missed the birds and the grey skies came clutching at my heart and the rain and sleet drove me indoors. Sleet क्या होता है? जो बारिश के साथ आप देखते हैं कभी कभी बर्फ़ की सी परत गिरती है, तो बारिश की वजह से और जो बर्फ़ की बारिश में जो बर्फ़ जैसे गिर रही थी उसकी वजह से he kept himself indoors. It snowed. The snow lay heavy on the branches of the oak trees and piled up in the culverts, and grass and the ferns and windflowers were
pressed to sleep beneath a cold white blanket, but the stream flowed on, pushing its way through and under the whiteness towards another river, towards another spring. अब उसके बाद क्या हुआ, जब स्नोफॉल होना शुरू हुआ तो जब सारे पेड़ के ऊपर, घास के ऊपर जब स्नो गिरती है तो क्या होता है, वो उसको कवर कर देती है, पूरा वाइट वाइट हो जाता है। लेकिन उसके नीचे भी क्या हुआ, जब सब चीज़ ढक गई है स्नो से और सब जगह कोल्ड ब्लैंकेट सा हो गया है, वो सब होने के बावजूद भी द स्ट्रीम वॉज फ्लोइंग, पुशिंग इटसेल्फ थ्रू एंड अंडर द वाइटनेस, एंड that was running towards another river, towards another spring. तो नेचर कभी भी शांत स्टिल नहीं होता, शांत होगा लेकिन स्टिल नहीं होगा, मूवमेंट उसमें होता रहता है। तो देखा बच्चों, आज नरेटर ने हमें नेचर की पूरी ब्यूटी को इस लेसन में एक्सप्लेन किया है। आई होप दिस लेसन इज क्लियर टू यू नाउ। इट्स टाइम टू रिवाइज, यू कैन रिवाइज इट।